Havoc in Himalayas, a flash flood in Uttarkashi's Tharali has actually caused deadly devastation across the village. Within seconds, the flash flood swallowed the entire village, washing away several homes and shops. Villagers were seen running and scrambling for safety as floods hit the region. At least 4 people have died in the devastation and several more are feared to be dead. As Uttarkashi deals with the aftermath of the disaster, the rescue operations are still continuing. The Army, the ITBP, the NDRF, the SDRF, all of them are working closely together. They have rescued 130 people so far. Amid the rescue operation, the Harsal Army camp also has been affected very badly. 2 Army personnel have been recovered but are still feared to be missing. The centre and the state governments both have given an assurance that the situation is being very closely monitored. All the necessary assistance is being provided. The Chief Minister of the state of Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, has said that the government's top priority is to rescue all those who are still stranded and restore electricity and connectivity back to the region as soon as possible. As India Today en route to the ground zero in Dharali, as we see the weather is playing hostile in this mammoth operation, as we are in Bhatwadi, hardly a 60-minute drive from this place where exactly the epicenter of the tragedy is. Now we see the national highway, the strategic national highway that connects Uttarkashi to Harshil, to Gangotri, and of course to Dharali has been washed away. Nearly around 150 meters of the stretch, the road earlier started caving in from one side, and now this entire stretch has totally caved in. The road has been destructed. As we see, the many teams are also being moved in, the NDRF, the ITBP, and several other such agencies for the rescue and search operations. The entire stretch that we see is not only washed away, and still, as I see, gradually it's caving in. So clearly, this is no more left an option. However, this was the only option to connect this stretch to one of the worst affected area in Dharali and Harshil. Subsequently, Bhagirathi is extremely furious, and now there are reports of the river lake formation uphill towards Harshil, and if that bursts out, or the water flow increases, and the magnitude of this devastation, not only in Dharali, but now widespreading to many other areas. As we travel from Rishikesh, Narendranagar, Tihri, Chamba towards this road, multiple such landslides, crossing over to those landslides, we somehow managed to reach this part, but going beyond this particular point, now that makes extremely difficult, and this will be exactly challenging for the other agencies who are also en route for the rescue work in Uttarkashi's Dharali. At ground zero in Bhatwadi, with cameraman Deepak Bish, this is Ashutosh Mishra for India Today. भागीरथी में आए सैलाब की ये तस्वीरें देखिए। हम भटवाड़ी में हैं और भटवाड़ी से जैसे आगे जाने का रास्ता बंद हुआ है तो पता चला है कि प्रशासन ने एहतियात के तौर पर इस पूरे इलाके में भागीरथी के किनारे रहने वाले लोगों को यहां से इवैक्यूएट करा लिया, खाली करा लिया। तो क्या दुकान हो, मकान हो, प्रतिष्ठान हो, व्यावसायिक संस्थान हो, सब कुछ बंद कर दिया गया है। कुछ स्थानीय लोग जो आ जा करके अपने घरों की चीजें देख रहे हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। कब खाली कराया गया आप लोगों को? शाम को 5 बजे करा देता। आप लोग को यहाँ से हटा दिया? कहाँ ले गए फिर? आगे व्यवस्था की गई? होटल पे है ऊपर। अच्छा, और यहाँ जितने लोग थे घर में कोई भी नहीं है? कोई नहीं है यहाँ। जैसे इस पैसेज में जाते हैं गांव में, दोनों तरफ मकान हैं, इन मकानों को भी बंद कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि लोगों को कहा गया कि यहाँ से आप हट जाएं, खतरा हो सकता है। और चूंकि भागीरथी की धारा के बेहद करीब हैं और अगर जहाँ पर लेक फॉर्मेशन है वो पानी अपने साथ आता है तो चपेट में सब कुछ ले जाएगा। तो जो भी लोग हैं वो अपना घर छोड़कर जा चुके हैं, घरों पर इस समय ताले हैं, सबको सुरक्षित इलाकों तक ले जाया गया है। वो इसलिए कि जान माल का नुकसान न हो। एक बहुत बड़ी चुनौती है न सिर्फ धराली में राहत बचाव कार्य सुनिश्चित करना, ये भी सुनिश्चित करना कि आपदा का जो मैग्नीट्यूड है, जो स्केल है, वो और बड़ा न होने पाए। सभी लोगों को निकालने की कार्रवाई हो रही है, सुरक्षित स्थानों पर उनको पहुंचा दिया है। सभी इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर सेना और आईटीबीपी और एसडीआरएफ के लोग मिलकर कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है एक एक व्यक्ति जो उसमें फंसा है उन सबको बाहर निकाला जाए। जिन लोगों के साथ भी ये प्राकृतिक आपदा का सामना जो कर रहे हैं, सरकार उनके साथ खड़ी है। एक एक व्यक्ति के साथ सरकार हर व्यवस्था को आगे करेगी और उन सबके साथ जो सहयोग है हर प्रकार की सहायता करेगी। वहाँ पर पोस्टमार्टम इत्यादि अन्य जो हताहत हुए हैं उनका जल्दी से जल्दी जो भी अन्य व्यवस्थाएं होनी है वो सब व्यवस्थाएं हम करेंगे। At about 13:45 hours, a mudslide and an avalanche struck village Dharali, which is around 4 kilometers north of Harsil, along the Gangotri axis. Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway.
Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. इन्फॉर्मेशन ज़रूर है कि धराली में एक खीर गंगा है गदेरा, जिसमें ऊपर जैसा वीडियो में भी हम देख पा रहे हैं कि वो क्लाउड बस्ट होने से काफ़ी पानी एक साथ आया है, एकदम से आया है। और चूँकि वहाँ पे गेस्ट हाउस हैं और छोटे रेस्टोरेंट भी है और होटल्स भी हैं, तो उसी के मद्देनज़र हमने अपना आर्मी का टीम हरसिल की है, उनको मैंने रिक्वेस्ट करके तुरंत भिजवा दिया था। और उनका भी एक अभी मेरे फ़ोन पे अभी नेटवर्क पे मेरे कनेक्टिविटी थोड़ा वीक हो रहा है, वहाँ पे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, लेकिन कुछ एक लॉसेस की सूचना है। तो 4 लोगों का उन्होंने मुझे बताया था कि लॉस का आया है और प्रॉपर्टी का लॉसेस भी है। तो हम लोग मौके पे निकल रहे हैं और मौके पे ज़्यादा अच्छा उसका एक सर किसी प्रकार की सर मानहानि का कुछ जनहानि का 4 का उन्होंने बताया। लगातार रेस्क्यू और एनडीआरएफ की टीम और हमारी आईटीबीपी और सेना की टीम वहाँ पर को काम कर रही है। स्थानीय प्रशासन भी रेस्क्यू कर रहा है। वहाँ पर हेल्थ से संबंधित डॉक्टर्स भी हैं ही और पूरी टीम प्रशासन की वहाँ पर है। हमारे जवान, हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ चूँकि जो इसके आपदा के प्रशिक्षित होते हैं, उनके पास अत्याधुनिक आपदा से संबंधित बचाव कार्य के लिए अपने एपरेटस होते हैं। उनके माध्यम से वो लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, उनको निकाल रहे हैं। जो लोग मकानों की छतों में फंसे थे, घरों की छत में था, उनको निकालने का काम बहुत तेज़ गति के साथ जारी है। उत्तराखंड प्रतिवर्ष इन दुर्घटनाओं से 2-4 होता है, फेस करनी पड़ती हैं क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं। अभी तक 80 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन बड़ी मात्रा में जब मलबा आया है तो निश्चित रूप से लोग भाग नहीं सके, बचा नहीं सके अपने आप को और मलबे में फंसे। बचाव कार्य सबसे पहले ज़रूरी है, फिर जो उनको बचाया जा रहा है उनके लिए भोजन, पानी, दवाई आदि की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, ये सब भी प्रशासन कर रहा है। बहुत दुखद घटना है उत्तरकाशी की। हम सब लोग बहुत दुखी हैं, पूरा देश दुखी है। अभी 4 मिसिंग की रिपोर्ट हमारे पास है। बाकी पहले लोगों को बचाया जाए, जो फंसे लोग हैं निकाला जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी तरफ से पूरी लगातार ऐसी घोषणाएं माइक से करके लोगों को जागृत कर दिया है और कुछ स्वयंसेवक और कुछ स्थानीय लोग भी इस बात को आगे फैला रहे हैं।